Children, very few students have joined, so I am waiting. But in the meantime, you all listen to what mistake you have done in your online test. ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 था कि आप एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए when the man is not walking or he is standing on the bus stop. यही क्वेश्चन था ना आप लोग का? Yes, ma'am. क्वेश्चन क्या था ऑनलाइन टेस्ट का? मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप. आप लोगों ने क्लास 7A का हम बहुत कॉपी कल चेक कर चुके हैं, उसमें सिमिलर मिस्टेक है. क्वेश्चन नंबर 1 में आप ऐसे प्लॉट कर दिए हो डिस्टेंस एंड टाइम और आप ये लाइन ड्रॉ ही नहीं की हो. लाइन नहीं ड्रॉ की, you will not get marks. If you have not drawn that line, then you are not going to get the marks for that. हम आपको डायग्राम बनाकर सेंड भी किए थे व्हाट्सएप पे. Then you are not alert in what I am telling you. So for the question answer, if you are not alert, then you will do this type of mistake. Good afternoon, ma'am. Okay. Okay, good afternoon all of you. Let us start this class, our online class, today's online class. We will continue with chapter reproduction in plant. Few topics are left in that chapter, so let us continue. For that, let us have a recap. एक बार recapitulation हम लोग कर लेते हैं. क्या recapitulation है कि पहले फ्लावर्स में asexual और sexual दो मेथड से reproduction होता है. Asexual method is again divided into budding, spore formation, then after that fragmentation, vegetative propagation by stem, root, leaf. Then we came to the sexual reproduction. In sexual reproduction, I told you before also, in the previous class I have given you the diagram, complete diagram. So today I will move forward from that flower part. You all know that reproduction process is carried out through this flower only, because flower is the sex organ which is present in the plant. It contains either both the sex organs, or sometimes it contains one sex organ. If it is containing both the sex organ, then it is known as bisexual, and if it is containing one sex organ, then that is known as Unisexual. Now children, I told you that when it is unisexual, then the anther has to be transferred to the stigma for the through the process of pollination. ये हम उस दिन भी आपको बताए थे. वैसे भी बाइसेक्सुअल में भी ये कैरी किया जाता है पॉलिनेटर्स के थ्रू, लेकिन बाइसेक्सुअल में ये इजियर मेथड है एज कंपेयर टू द यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में आपका मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा, तो उसको कैरी करने के लिए एजेंट्स होते हैं, एंड दीज एजेंट्स आर नोन एज पॉलिनेटर्स. एजेंट्स आपका विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है और इंसेक्ट्स भी. एनीथिंग कैन बी द this agent of pollination, and they are known as pollinators. उसको pollinators कहा, जो इस एंथर और स्टिग्मा को कैरी करते हैं दूसरे के तरफ. Going to see one more topic, that is fertilization. In this topic, children, are you having any just idea of the stigma in the in the flower? Stigma in the flower. Then stigma is there present in the female flower, and the anther has to be carried from the different other flower or from the same flower. Bisexual और sexual का concept में, और उसको आपको जब वो दोनों मीट करेगा तो एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? What happens in fertilization? The stigma just obtains that anther
and carries it to the ovule. उसको ओव्यूल तक कैरी करता है और ओव्यूल में जाकर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके कारण सीड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके पहले सीड फॉर्मेशन के पहले क्या होता है वो आप देखिए। Before fertilization, then two gametes, male and female gametes, they are fusing and they are forming one male gamete and they are known as one cell and they are known as gametes. एक cell बनता है, दो cells तो एक cell और उसके बाद ये cell बनने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं gametes को। या now its name is gamete। अगर हम लोग male और female की बात कर रहे हैं male और female की बात कर रहे हैं we will not say male cell and female cell, हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सेक्स ऑर्गन है। अब सेक्सुअल सेल है, ठीक है, तो सेक्सुअल सेल्स आर नोन एज गैमेट्स। तो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, दोनों फ्यूज किया और एक सिंगल सेल बना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वन गैमेट, एक गैमेट में क्या होगा, अब इसमें डिवीजन होगा, इट विल डिवाइड, जैसे प्लांट, तो प्लांट में क्या होगा, लीफ, देन रूट, स्टेम, ये सब का फॉर्मेशन होगा। तो वो किस स्टेज में होगा, ये सारा आपको जब गैमेट्स बनेगा तो आपको वो स्टोर्ड रहता है सीड के स्टेज, और जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो क्या हो जाता है, दैट कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन द प्लांट। लेकिन यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के बाद वो क्या होगा, वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विल टेक प्लेस। और एम्ब्रियो क्या डिसाइड करेगा, एम्ब्रियो डिसाइड करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के केस में एम्ब्रियो के डिवीजन, गैमेट्स के डिवीजन के बाद ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। तो उसी तरह प्लांट का बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट का बॉडी का स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट पार्ट्स है, तो वो सारा किस चीज में स्टोर हो जाता है, वो सारा सेल्स आपका सीड में स्टोर हो जाता है। आप देखना, इसका एक टेस्ट करके देखना, कैसे टेस्ट करोगे, एक ग्राम सीड ले लो, ठीक है, ग्राम सीड को आप कॉटन में, मॉइस्ट कॉटन में सोक करके थोड़े दिन तक छोड़ दो कहीं डार्कनेस से। आप देखोगे थोड़े दिन के बाद उसमें व्हाइट कलर का एक ये निकलने लगता है, तो दैट इज व्हाट, आप बोलोगे रूट है, तो रूट केवल नहीं होता है, उसमें स्टेम भी निकलता है साथ साथ। आप वो व्हाइट स्ट्रक्चर को कुछ दिन के बाद जब छोड़ दोगे, प्रॉपर कंडीशन, मतलब लाइट और हीट प्रॉपर मिल रहा है, तो देखोगे वो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दो भाग में स्प्लिट हो गया। एंड दैट स्प्लिटेड पार्ट, एक आपका रेडिकल होता है, दूसरा प्लूम्यूल होता है। रेडिकल आपका रूट की तरफ चला जाएगा, प्लूम्यूल ऊपर की तरफ चला जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये पार्ट बनता है उसका। तो वो जो बाइफर्केशन होगा, आप उसको अपसाइड डाउन भी करोगे, व्हेन यू विल कीप इट अपसाइड डाउन आल्सो, यू विल सी दैट इट इज नॉट हैविंग एनी चेंज। वो आपका रेडिकल का पार्ट नीचे ही घूम के चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसके सेल में ये टेंडेंसी है कि वो मूव करेगा टुवर्ड्स द जियोग्राफिक पोल्स, ये ग्रेविटेशनल पुल, मतलब उसके रूट्स को हमेशा क्या होगा, सॉइल की तरफ जाने का ये रहेगा। आप उसको चेंज कर दो, अपसाइड डाउन करो, किसी तरह से भी करोगे, वो थोड़े देर के बाद टर्न करके नीचे ही चला जाएगा। कौन सा पार्ट, रेडिकल पार्ट, और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसके सेल में ऐसा अरेंजमेंट है कि वो मींस टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करता है, ये रूट, और स्टेम वाला पार्ट दैट इज योर प्लूम्यूल, दैट विल गो टुवर्ड्स द योर अवे फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, ये आपको हो गया एम्ब्रियो तक की बात। अब आ जाओ फेज ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का क्या फेट होता है, मतलब उसका क्या किस तरह का उसमें डेवलपमेंट होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड, जो हम आपको बताए मेथड से फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विल टेक। सीड को कवर करने के लिए फ्रूट क्या होता है, फ्लैशी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जस्ट टू गिव प्रोटेक्शन टू द सीड। वो हमको नेचर हमको खाने के लिए नहीं बनाया, हम लोग उसको यूटिलाइज करें। वो अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लैशी आउट कवरिंग बनाना, बट वी टेक इट फॉर आवर ओन नेसेसिटी। जैसे हमको एप्पल का फ्लैश पसंद है, हम एप्पल खा लेते हैं। जैसे हमें पपाया पसंद है तो हम पपाया खा लेते हैं। तो दिस वी डू अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी। नेचर डज नॉट गिव अस, नेचर ये नहीं देता है कि ये ह्यूमन बीइंग इसको खाएगा इसलिए इसको थोड़ा फ्लैशी बना, ऐसा नहीं है। वो आपको देता है नेचर, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। सीड के प्रोटेक्शन के लिए फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, फ्लैशी फ्रूट का डेवलपमेंट। जैसे कोकोनट के को कभी ये आप राउंड कवरिंग में देखो, जिसके चारों तरफ कितना फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है, मोटा उसका छिलका निकालना पड़ता है और उसके बाद उसका राउंड बॉल लाइक फ्रूट मिलता है, जो कि हार्ड शेल में कवर है ना। So this is very important that nature has not provided for us. वो अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूट को इतना फ्लेक्सी और जूसी बनाया। स्टॉप मेकिंग नॉइज, नॉइज बंद करिए। एक कमरा में पूरा दुनिया घूम के चलेगा घर पे। स्टॉप द नॉइज, ऑल ऑफ यू। ये आवाज आ रही है हर्षमित के घर से, स्टॉप इट। Then, after that, we will talk about development of baby plant. ठीक है? Children kindly don't discuss. Then, germination, कितने लोग germination देखे हो? How many of you have seen germination of seeds? मैम आई सब लोग आई थिंक जर्मिनेशन देखे होंगे, क्योंकि आप लोग इस पर प्रोजेक्ट बहुत बार बना चुके हैं। यस जर्मिनेशन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन जर्मिनेशन? जब आप किसी भी सीड को सोक करते हो तो उसमें से एक बेबी प्लांट निकलता है। उस बेबी प्लांट में आपका क्या होता है, रेडिकल रूट डेवलप करता है, ऊपर जाता है, धीरे-धीरे and gradually it becomes a bigger plant. वो एक bigger plant में develop करता है। After that, we are having the topic who is making noise? Harshmit. Harshmit, please don't make noise. 7B Harshmit. और तो वो हार गए, कितना पेड़ तो बहुत ध्यान देके खेल रहे हैं। अलग एक ताली कोची कर रहे हैं ना कर रही है। जब लास्ट सिचुएशन में ना सब पूरा तेज प्रताप के बर्थडे है ना, पूरा सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब बड़े हारे कोई in the class. कौन होगा यानी बहुत पीछे पहले बहुत सारे भेजे पहले उन्हें कितना पर पड़े। Okay, who is this? Harshmit. म्यूट कर दीजिए। Harshmit, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए यहाँ पर बीच में बात नहीं करें। कहाँ 85 86 में लड़की कर रहा Let's see how they are fighting. हाँ से 10 साल 15 साल शासन किया, फिल्म में भी आदमी एक फिल्म देखते देखते थक जाता है, तो चेंज Harshmit, please don't talk. तेरे तो जरूर तेज प्रताप बनेगा पूरा 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 और सब लड्डू सब पूरा पटना में
पूरा सब बुके उके लेके आए, लड्डू तो सब बनते हैं, नाम सब हो गए। ये क्या है? बस Okay, then we are talking about dispersal. हम लोग अब बात कर रहे हैं dispersal. Dispersal of seeds. It is very necessary, children, that seeds should be dispersed. Seed को disperse करना बहुत जरूरी है. अब आप पूछोगे क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि सीड अगर डिस्पर्स नहीं होगा तो आपका जो सारा सीड एक ही जगह आपको गिर जाएगा प्लांट से और ड्राई होके, और उसमें स्कैर्सिटी ऑफ फूड, वाटर, सनलाइट हो जाएगा. इसलिए उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस में सेपरेटेड आउट होना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी नेसेसरी टू बी This separation can be done with the help of dispersal. And what are the different agents of dispersal? Agents कौन-कौन है dispersal के? Dispersal के agents हैं wind, dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by animals, dispersal by explosion. That is seen in case of castor. Castor के केस में explosion के कारण आपका dispersal होता है. The process of pollination requires pollinators. Pollinators are agents that carry or transfer the pollen grain from an anther to a stigma. Wind, bees, butterflies, and many other insects, birds, rats, and bats are the main pollinators in nature. In some aquatic plants, water is an agent of pollination. Pollen grains are very light and microscopic in size. They contain the male reproductive each in wall that tough and resistant to decay. Patterns present on the outer walls are distinctive of the species of a plant. The wind-pollinated flowers have their anthers situated at a higher level than the petals. This lets the pollen grain to get blown away by wind. The insect-pollinated flowers are brightly colored and have a nectar gland. These release a sweet liquid nectar that attracts insects. Fertilization. Pollen grains germinate when they fall on the stigma of a flower of the same species. A pollen tube is produced that reaches the ovule. The male and female reproductive cells, called gametes, fuse to form a zygote. This process of fusion of the male and female gametes is called fertilization. The zygote then divides inside the ovule to form out a baby plant called the embryo. The fate of the flower after fertilization. After fertilization, the sepals, petals, stamens, and stigma usually dry up and fall off. Development of a seed. The ovules form seeds. The seed has cotyledons to store food, and the future plant is that the embryo. Development of a fruit. After fertilization, the ovary begins to grow and forms the fruit. The fruits may be sweet and juicy like mango and orange, or they may be hard or woody like almond and walnut. The fruit is thus actually a ripened ovary. Germination. Germination of seed. Under suitable conditions, the seed germinate to form a seedling that grows into a new plant. Okay, do you know also you study? Read it. Do you know some fruits like apples are termed as false fruit? Apple is known as the false fruit as the juicy edible portion does not develop from the ovaries
but from the receptacle present just above the stalk of the flower. Okay, so till here any problem, anybody? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक जो हम बता चुके हैं आपको? मैम बीज के हाथ में कैसे पोलन ग्रेन सब चिपकता होगा? हाँ, मैम बीज के जैसे कि बॉडी में कैसे, मैम बीज के बॉडी में पोलन ग्रेन कैसे अटैक होता होगा? जैसे सपोज कर लो बीज नेक्टर सक करने के लिए वो किसी फ्लावर पर बैठा, ठीक है, नेक्टर सक करना है उसको, वो इस मकसद से नहीं आता है कि उसको ये करना है, ट्रांसफर करना है आंसर को, वो अपने फायदे के लिए आता है। और जब उस पर नेक्टर सक करने के लिए बैठता है तो वो क्या हो जाता है, उसके सपोज कर लो लेग्स में या विंग्स में या माउथ पोर्शन में वो एंथर सट गया, ठीक है। अब वो जब स्टिक कर गया तब वो जाता है और अगर दूसरे फ्लावर में मतलब उसी का अगर मेल पोर्शन स्टिक किया और बाय चांस, ये कोई इंटेंशनली नहीं होता, इट इज नॉट इंटेंशनली, ये इंटेंशनली नहीं होता है, ये आपको बाय चांस होता है, ठीक है। ये हमेशा बाय चांस होता है कि मे बी, हमेशा ये क्वेश्चन रहता है मे बी the insect have gone to the male flower and then again stick on the female flower, then that may be transferred. एक चीज और है important इसमें कि स्टिग्मा चूंकि चिपचिपा होता है और एंथर ड्राई होता है, तो जब वो ड्राई एंथर को लेकर अगर वहां पर गया, मान लो स्टिक कर गया, वहां पर पहुंच गया जहां पर फीमेल फ्लावर है, तो क्या होगा, वो चिपचिपे वाले पोर्शन में, स्टिकी पोर्शन में क्या होगा, वो एंथर बाय चांस उसमें स्टिक कर जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट इंटेंशनल, इट इज जस्ट बाय चांस, ठीक है। देन यहाँ तक क्लियर है सबको? टॉपिक इज क्लियर? यस मैम। ओके, चलो अब हम लोग ये टॉपिक पे आते हैं, सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का हम आपको बता दिए डेफिनेशन, दैट इज स्कैटरिंग अवे ऑफ द सीड फ्रॉम द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट मतलब जहां से वो ओरिजिनेट किया है, जहां वो डेवलप किया है, तो उस पार्ट से जब अगर कोई ये सीड दूसरे स्थान पर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो आप देखते होंगे कि सीड डिस्पर्स हो जाता है। ये भी बाय चांस है, इट इज नॉट जस्ट बाय दैट इंटेंशनली इट इज बीइंग डन। वो प्लांट ग्रो कर रहा है आपको एनवायरनमेंट में, वो कैसे इंटेंशनली कोई कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा डिफरेंट एजेंट्स है, इसको पॉलिनेटर्स भी बोलते हैं, उसको डिस्पर्सिंग एजेंट्स भी बोल सकते हैं। तो वो है आपका डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑन फूड। तो अलग अलग तरह के प्लांट में अलग अलग तरह का एंथर्स और स्टिग्मा होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे आर ग्रोइंग। जैसे डिस्पर्सल बाय विंड में मदार है, मदार का डिस्पर्सल हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, लाइट है, तो वो विंड से हो सकता है, इट इज अ लाइट, इट हैज गॉट लाइट सीड्स, तो वो हवा से उठ के यहाँ से वहां चला जाएगा। दूसरा बाय वाटर, जैसे कोकोनट प्लांट कहाँ ग्रो करता है, कोकोनट प्लांट हमेशा सी बीचेस और लेक और पॉन्ड के पास ग्रो करता है, तो वो वहां से वाटर में फॉल करेगा उसका सीड और वो बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तीसरा है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जिसका हुक टाइप ऑफ सीड होगा। तो मान लो एनिमल्स के फर कोट में या स्किन में वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। एनिमल अगर उधर से पास कर रहा है तो वो हैंग होके और वहां पर ट्रांसफर कर देगा। मतलब एक्सप्लोजन का मतलब हो जाता है जब ड्राई हो जाता है। प्लीज डोंट स्टॉप दिस।
It is coming from Aditya Arya. Aditya Arya. Okay, okay. I'll see you after the class. Aditya Arya. ठीक है? बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करेगी क्या? मुठों की चाबी से दिल पे लॉकअप करेगी क्या? मम्मी Aditya Arya, please stop making noise. चिंता करेगी क्या? Okay, चलो. अब आप लोग एक बच्चा कम से कम उठिए और उसको रीड करिए. Read this first. उड़ेगी क्या? मुझे एक हवा लगी. Mostly higher plants पता कल का प्लान है, मेरे साथ क्लब चलेगी क्या? गर्राना मस्ताना पीना जो दिल में है. हो गया हमारे Aditya Arya. मैम रिमूव हिम Okay, चलो. वो एक साथ भी read करो तो. Mostly higher plants reproduce by producing seeds. Seeds also help plants to spread out and grow in new places. Ma'am, can I A read? long distance away from parent plant. This is important because the seeds are not dispersed. A large number of the germinating seedlings can grow close to the parent plant. This will result in competition between the seedlings as well as the parent plant. The competition is for getting light, space, water, and all nutrients. All of these are important plants to able to grow and survive. Seeds can be dispersed in a number of depending on the nature of the seed. They may be carried by wind, water, or animals. Some plants even shoot out the seed explosively. Dispersal by wind. Seeds that are very light get carried to a new place by wind. The seeds of orchid are almost fine as it is. Many others like the seed of Madar Ak have hairy growths which act like little parachutes and carry the seed far away from the parent plant. The seeds of drumstick, maple, and fruits of sunflower are also carried by wind. Dispersal by water. Fruits which float, such as those of the lotus, water lily, and the coconut palm, are carried away by water. Coconuts can travel for 1,000 of kilometers across seas and oceans. Dispersal by animals. Some plants have a juicy fruits like animals to eat. Animal eats the fruit, but not the juicy part is digested. Only the juicy part is digested. The seeds pass through the animal's digestive system. As such, they are deposited on the land where they form new plants. This land can be far away from the parent plant was. Cherry and apple seeds are dispersed in this way. Birds also like to eat some fruits, help disperse the seeds to other areas through their droppings. Some seeds, like those of xanthium and urena, have a spiny seeds with hooks. These seeds get attached to the fur of animals and carried away. Dispersal by explosion of fruit. Wait a minute. Omkar, wait. Aditi, you start. Aditi, you are Dispersal requesting by to start. yes, ma'am. Dispersal by explosion of fruits. Some plants have Animals complete कर लो. Animals complete कर लो. some complete हो गया था. अच्छा, चलो आगे. Dispersal by explosion of fruits. Some plants had pods that explode with ripe and shoot out the seeds. Seeds can get scattered far away from the parent plant. Scattered far away from the parent plant. This process is seen in plasma. Not Seeds plasma. of but balsam. when the seeds are ripe and the